everyone, welcome to Panacea Tutor. Let's begin with our today's UPSC Prelim series Geography revision. So my topic of discussion for today is El Nino, La Nino and Indian Ocean Dipole. But before I begin with El Nino, La Nino and Indian Ocean Dipole, I would like to substantiate on the concept of the wind pattern that flows in your normal year. See, this is your Pacific Ocean. This is your North America continent, this is your South America, this is your Asia continent, and this is Australia. In a normal year, the sea surface temperatures in the Pacific Ocean is warmer near the coast of Australia and is colder on the Peruvian coast. So here low pressure region is created and cloud formation is generally in this region. So if the cloud formation is here, so it is more wetter as compared to your eastern region, and here the water is displaced by some upward moving water which lies in your deeper ocean. So the cold nutrient rich water comes upstairs and here your fishing zones are created. This is famously called upwelling, and this industry is very prominent in summers during this phenomena. This is what happens in a normal year. Now if I talk about El Nino is basically warming of your Pacific Ocean's water. Now this warming happens in your southern hemisphere. That means if this is your equator, then this warming in your Pacific Ocean will happen somewhere in the southern hemisphere of your globe. If I have to substantiate it, see, El Nino has been derived from little boy, which means Christ child in Spanish. This basically is this phenomena that you can see in this diagram. Here is the coast of Peru in your South American region, and here on the coast of Australia continent. The sea surface temperature is warmer on your Peruvian coast, and let me tell you, whenever there is warmer temperature on any coast, there a low pressure is created. The low pressure automatically creates a space for the air to get lighter and rise towards the atmosphere. तो यहाँ से जो एयर राइज करती है ये यहाँ पे जाके क्लाउड फॉर्मेशन करती है एंड दिस रिजल्ट्स इन मोर रेनफॉल. और अगर आप इस मैप को ध्यान से देखो तो आपका इंडिया इस साइड जाता है, राइट. सो विंड की मूवमेंट आपकी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स की तरफ है. जिस साइड विंड की मूवमेंट है और जिस साइड ज्यादा वार्मिंग है उस साइड ज्यादा रेनफॉल होगी. तो जब भी कभी एल नीनो का ईयर आता है तो वो इंडियन मॉनसून के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता. आप ये देखो, एक लो प्रेशर जोन यहां बनता है, एक लो प्रेशर जोन यहां बनता है, तो विंड जो है वो डिविएट हो जाती है. और इक्वेटर के पास मैं आपको बता दूं कि ट्रेड विंड्स जो हैं वो ब्लो करती हैं, और ये ट्रेड विंड्स ऑटोमेटिकली वीकर हो जाती हैं. जब ये वीकर हो जाएंगी तो ये ज्यादा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स की तरफ ट्रैवल करती हैं और वहां पे उस एरिया को वार्मर बनाती है. दिस इज व्हाट हैपेंस इन एन एल नीनो ईयर. और अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि ट्रेड विंड्स जो हैं आपकी वीकर हो जाती हैं. ट्रेड विंड्स के बारे में बता दूं, अगर ये आपकी अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, तो ट्रेड विंड्स जो हैं आपके दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दोनों के बीच में जो ट्रेड विंड्स हैं वो कन्वर्ज करती हैं इन अ नॉर्मल ईयर. अब ये जो ट्रेड विंड्स हैं इनका फिनोमेना जो है वो वीकन हो जाता है जब भी आपका एल नीनो ईयर आता है. एल नीनो आपका हर साल नहीं आता है. इट अकर्स नॉर्मली इन अ पीरियड ऑफ 2 to 7 years. ये एवरेज है जिसपे ये चीज वेरी करती है. अब आप ये देखो, अपवेलिंग जोन जो यहाँ पे पेरुवियन कोस्ट पे पहले बन रहा था, क्योंकि आपकी वार्मिंग पहले ऑस्ट्रेलिया की साइड ज्यादा हो रही थी, वो जो अपवेलिंग जोन है वो इधर बनेगा जहां पे आपका कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर है. तो इस टाइम में जब आपका एल नीनो ईयर होता है तो आपकी पेरुवियन कोस्ट पे जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है.
क्यों? क्योंकि वहां पे जो फिशिंग जोन है, जो कोरल ब्लीचिंग है, जो कोरल्स हैं, वो अच्छी तरह डेवलप नहीं कर पाते हैं। अगर मैं बताऊं इसका जो इम्पैक्ट है, आपका जो पैसिफिक जेट स्ट्रीम है वो साउथ की तरफ और फर्दर ईस्ट की तरफ जो है वो चलने लग जाता है। See, what we have understood right now, we'll try plotting it here. ये आपकी पेरुवियन कोस्ट है। ये पेरुवियन कोस्ट पे आपका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा वार्म हो जाता है। दैट मीन्स जो सी सरफेस टेम्परेचर है यहाँ पे वार्मर है और यहाँ पे कोल्डर है। तो जो आपकी मूवमेंट होगी यहाँ पे, क्योंकि वार्म है तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इसके ऊपर की हवा, इस लैंड के ऊपर की हवा जो है वो लाइटर होगी, वो राइज करेगी। मतलब यहाँ पे जितना पानी है वो राइज करेगा और इसकी जगह कौन सा पानी लेगा? जो इधर से पानी आएगा। अब यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे आपके अब अपवेलिंग जोन्स बनेंगे और अपवेलिंग जोन्स जो हैं वो फिशेस के लिए बहुत प्रोमिनेंट माने जाते हैं। अब आपकी पेरुवियन कोस्ट जो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस थी, वहां पे फिशिंग जोन जो है उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। वहां पे जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो उस टाइम नुकसान में चलती है। तो आपका एल नीनो ईयर ऑल इन ऑल आपकी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। यहाँ पे ये फ्लडिंग जो है, वैसी टाइप की कंडीशंस, बहुत सारे साइक्लोन्स, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस साइड जो इसकी ऑपोजिट साइड है, दैट मीन्स इंडिया आपकी कंट्री समवेयर इधर लाई करती है। इंडिया में यहाँ पे कहीं जो मॉनसून है वो डेविएट हो जाती है, उसके पास दो दो प्रेशर सर्फेसेस आ जाते हैं। सो दिस इज हाउ योर एल नीनो कॉन्सेप्ट वर्क्स। अब एल नीनो से ऑलमोस्ट आपकी हर चीज के ऊपर फर्क पड़ता है। आपका वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और अगर आपका वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है कंट्री का तो ऑब्वियसली वो आपके एग्रीकल्चर को अफेक्ट करेगा। एग्रीकल्चर अफेक्टेड होगा तो कहीं ना कहीं फूड क्रॉप्स पे ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ फूड क्रॉप ज्यादा मिलते हैं। उसकी वजह से हमारे एमएसपीज, जो हमारे दूसरे टाइप के क्रॉप्स हैं, या जो हमारी इकोनॉमी है जो कि टोटली एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है इसका। सो एल नीनो इज बेसिकली नॉट गुड ऑन एन एवरेज फॉर योर इंडियन मॉनसून। आगे चलते हैं, ला नीनो के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ला नीना एल नीनो के टोटली ऑपोजिट फिनोमेना है। एल नीनो आपका वार्मिंग होता है पैसिफिक ओशन में और ला नीना इज योर कोल्ड इवेंट। इट बेसिकली इज कूलिंग ऑफ वाटर्स ऑफ पैसिफिक ओशन। तो जैसे कि हमने ऑपोजिट अगर उसको करें, अब आपका एल नीनो में इस साइड वार्मिंग बन रही थी ऑन द कोस्ट ऑफ पेरू, बट इस सिनेरियो में जो आपका ला नीना है दैट इज अ कोल्ड इवेंट। इसको लिटिल गर्ल भी बोलते हैं स्पेनिश में, ठीक है। ये जो है, इसमें जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट है या ये जो कंट्रीज हैं जो आपकी ईस्टर्न साइड पे हैं, जापान एंड ऑल, यहाँ पे जो वाटर की वार्मिंग है ना वो ज्यादा बन जाती है। और जहां पे भी मैंने आपको बताया वाटर वार्म होता है वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो हवा जो है वो, जो सी सरफेस टेम्परेचर है, जो सी सरफेस वाटर है वो राइज करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन क्लाउड फॉर्मेशन। तो इस साइड बारिश जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू योर पेरिवियन कोस्ट। और पेरिवियन कोस्ट पे दोबारा से फिशिंग इंडस्ट्री, क्योंकि यहां से जो है दोबारा से आपके अपवेलिंग जोन्स बनेंगे, क्योंकि आप देखो जो पानी इधर से डिस्प्लेस होके आपकी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ गया, अब यहाँ पे जो वॉइड बना था वो नीचे जो डीपर ओशन में पानी है वहां से ऊपर आएगा। दैट मीन्स योर कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर विल रीच द सरफेस। तो ये जो आपका जोन बनेगा यहाँ पे, ये आपकी फिशिंग इंडस्ट्री के लिए फिर से जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगा, राइट। ऐसा ही आपको इधर देखने को मिलता है। जब आपने नॉर्मल ईयर किया था तो ये जो वार्मिंग है ना ये कम थी, और यहाँ पे जो वार्मिंग है ये ऊपर एशिया कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाती है। सो ऑल इन ऑल दिस कंप्लीट मूवमेंट रिजल्ट्स इन योर कॉन्सेप्ट ऑफ ला नीना। तो आपका वाटर मूवमेंट जो है वो, वाटर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस साइड देखने को मिलती है, और यहाँ पे आप ज्यादा मोर रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हो। और आप देखो ये जो प्रेशर जोन है ये इंडिया की तरफ भी ट्रैवल करेगा, दिस इज योर इंडियन टेरिटरी। तो जब ये इधर को वार्मिंग इफेक्ट ट्रैवल करेगा, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर इंडियन मॉनसून्स एज वेल। हमारी इंडियन मॉनसून्स को इससे स्ट्रेंथनिंग जो है वो मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या किया, ला नीना में जो वार्मिंग इफेक्ट है वो आपका हमें यहां देखने को मिलता है।
अब जहां पे भी मैंने बताया वार्मिंग इफेक्ट होता है वहां पे लो प्रेशर बनता है, तो जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो राइज करता है, आपकी एयर राइज करती है, क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं और वहां पे बारिश होती है, राइट, एज कंपेयर टू, और यहाँ पे साउथ अमेरिका वाली कोस्ट पे यहाँ पे आपका कोल्ड इवेंट है, यहाँ पे फिर से अपवेलिंग जोन्स बनते हैं, फिशिंग इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है ये, बट यहाँ पे अभी आपको ड्रॉट्स एंड ऑल एक्सपीरियंस होते हैं और यहाँ पे फ्लडिंग कंडीशन नहीं बनती है। फ्लडिंग कंडीशन की पॉसिबिलिटी या साइक्लोन्स आने की पॉसिबिलिटी आपकी इधर वाली कंट्रीज को एक्सपीरियंस होती है। तो आपके पैसिफिक ओशन की वार्मिंग और पैसिफिक ओशन की कोल्ड इवेंट के कारण आपके अलग अलग फिनोमिना जो हैं आपको एक्सपीरियंस होते हैं। अब ये भी आपका 5 to 7 years के एवरेज में वेरी करता है, जरूरी नहीं है कि हर साल होगा ही होगा, डिपेंड्स ऑन वार्मिंग ऑफ योर इंडियन ओशन। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं मिला दूं, एल नीनो कॉन्सेप्ट ऑल्सो एंड ला नीनो कॉन्सेप्ट ऑल्सो, अगर आपको याद हो तो अगर आपकी ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है और ये आपकी पेरुवियन कोस्ट है, दैट मीन्स साउथ अमेरिका वाली, दोनों के अंदर अगर एल नीनो होता है तो आपकी वाटर डिस्प्लेसमेंट ऐसे होती है, राइट, और अगर ला नीनो इफेक्ट है तो आपकी वाटर डिस्प्लेसमेंट ऐसे होती है। तो जब आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला देते हो, दैट इज नथिंग बट योर एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इरेगुलर पीरियोडिक वेरिएशंस है आपकी विंड मूवमेंट के कारण, जो कि आपके पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। वॉकर सेल, वॉकर सेल बेसिकली क्या है, आपके एटमॉस्फेरिक सिस्टम में जो एयर फ्लो है जो आपके इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में वर्क करता है उसी को कहते हैं वॉकर सेल। बेसिकली गिलबर्ट वॉकर ने दिया था, इसीलिए इनका नाम उन्हीं के ऊपर पड़ा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये आपकी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है, ये आपकी साउथ अमेरिकन कोस्ट है। जब ट्रेड विंड्स इस साइड जाती हैं, दैट मीन्स ट्रेड विंड्स आर वीकर and then they return again, cloud formation होती है, they result in rain, then there is this kind of circulation experienced. This is your Walker cell phenomena, क्योंकि ये पहली बार इसकी थ्योरी जो है आपके गिलबर्ट वॉकर ने दी थी। आगे चलते हैं। अब बारी आती है आपके इंडियन ओशन डायपोल की। अब पहले जो हमने एल नीनो और ला नीनो कॉन्सेप्ट्स किए थे वो आपके वार्मिंग और कूलिंग ऑफ योर पैसिफिक वाटर्स थे। अब इंडियन ओशन में भी ऐसा ही कुछ सिमिलर फिनोमेना देखने को मिलता है, जिसको आप वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन और कोल्ड इवेंट इन द इंडियन ओशन देखने को मिलता है। तो इंडियन ओशन डायपोल, इसको आप बेसिकली इंडियन नीना भी बोल सकते हो, ये आपके इंडियन ओशन में रिजल्ट करता है। अगर मैं आपके इंडिया के कोस्ट लाइन को बनाऊं तो इधर आपका अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। दिस होल रीजन इज योर इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन में जब कभी एक साइड वार्मिंग हो और दूसरी साइड कोल्ड इवेंट प्रेजेंट हो या वाइस वर्सा, देन इट रिजल्ट्स इन योर इंडियन ओशन डायपोल, और ये कहीं ना कहीं आपकी मॉनसून को भी अफेक्ट करता है। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है और नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है। अगर मैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की बात करूं तो पॉजिटिव इंडियन ओशन में ये आपका इधर अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो आप रेड मार्क देख रहे हो, दिस कंप्लीट एरिया, दिस कंप्लीट सी सरफेस टेम्परेचर हेयर इज वार्मर देन द एवरेज टेम्परेचर। और मैंने बताया था जहां भी वार्मर टेम्परेचर होगा वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, तो जो करंट्स है वो अपवर्ड मूव करेंगे और इस करंट की जगह कुछ यहाँ पे डिस्प्लेस करने के लिए चीजें आएंगी और यहाँ पे आपके कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर, मतलब यहाँ पे अपवेलिंग जोन बनेगा। जब अपवेलिंग जोन यहाँ बन गया और इधर लो प्रेशर जोन है, सो दिस विल स्ट्रेंथन समवेयर योर मॉनसून एज वेल, राइट। सो दिस वार्मिंग ऑफ योर अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द इंडियन ओशियन more than the average results in your positive impact on Indian Ocean Dipole, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी मॉनसून को और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। इसी से बिल्कुल ऑपोजिट फिनोमेना आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या होगा, अब ये वाला जो एरिया है ना जो पहले वार्म हुआ था, अब ये कूलर रहेगा, कूलर देन द एवरेज, और ये वाला एरिया जो है जो पहले कोल्ड था ये वार्मर रहेगा। अब ऑपोजिट चलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे कूलर है तो ऑब्वियसली ये विंड्स को जो है यहाँ पे स्ट्रेंथन नहीं करेगा, ऑब्वियसली ये इंडियन मॉनसून को आगे बढ़ने नहीं देगा और ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं होने देगा और ज्यादा बारिश नहीं करने देगा। तो बारिश आपकी इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे वार्मर रीजन है, लो प्रेशर डेवलप होगा, तो दैट विल रिजल्ट इन
क्लाउड फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे इस साइड पे आपको बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू दिस साइड. तो यहाँ पे यू एक्सपीरियंस लेस रेन एंड दिस साइड यू एक्सपीरियंस मोर रेन. सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल. आई होप आपको ये समझ में आया है. तो लेट्स टेस्ट लिटिल बिट कि आपको कितना समझ में आया है. प्लीज अटेम्प्ट these few questions. My first question is, which of the following is the cold event? Number 1, El Nino. Number 2, La Nina. Number 3, Southern Oscillation. Number 4, Northern Oscillation. See, this is a very simple concept. Pause the video and try answering. अभी आपने इतना सब कुछ पढ़ा है. So the answer here is La Nina. Second question. Which of the following statement is or are correct about El Nino? The term El Nino translates from Spanish as the boy child. Peruvian fishermen originally used the term to describe the appearance around Christmas of a warm ocean current off the South American coast. It is now the commonly accepted term to describe the warming of Central and Eastern tropical Pacific Ocean, and D is all of the above. Please pause the video and try answering. So let me tell you that this first we have done in our previous slides. This is definitely true, क्योंकि आपके जो पेरुवियन फिशरमैन है वो ओरिजिनली इसको डिस्क्राइब करते थे अराउंड क्रिसमस ईयर ओनली. सो दिस इज एन एड ऑन दैट यू हैव गॉट. इट इज नाउ द कॉमनली एक्सेप्टेड टर्म टू डिस्क्राइब द वार्मिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन. ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये आपने अभी पढ़ा था पहले. तो ऑल इन ऑल आपकी तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है आपका डी पार्ट. राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Consider the following statements related to the impact of La Nina. Drought in Ecuador and Peru. Low temperatures, high pressure in Eastern Pacific. Second statement, heavy floods in Australia, high temperature in the Western Pacific, Indian Ocean, off coast Somalia, and good rains in India. अभी आपने थोड़े टाइम पहले मेरे साथ अभी ये चीजें कवर की थी. Please analyze the statements and try answering. So let me tell you the correct answer. The correct answer is both 1 and 2. Both the statements are definitely correct. आप पिछली slides को go through कर सकते हो दोबारा अगर आपका ये question गलत आया है. आगे चलते हैं. My next question. Consider the following statements related to similarity of El Nino and La Nina. They are part of larger cycle called ENSO or El Nino Southern Oscillation. They are known to alter climate across more than half of the planet and dramatically impact the weather patterns. अभी मैंने आपको इतने सारे slides दिए. Try answering the question. Pause the video. So the correct answer here is both 1 and 2. Yes, both the statements are correct. ये तो आपको मैंने बताया कि El Nino plus La Nino together gives you ENSO. दोनों की वो जो circulation बनती है ऐसे, right? This is your El Nino, La Nino. फिर उसके बाद ये सब जो है वेदर पैटर्न्स को इम्पैक्ट करते हैं. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो डेफिनेटली योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. सो दैट्स ऑल इन माई टुडेज एडिशन फॉर योर एल नीनो, ला नीना एंड इंडियन ओशन डाइपोल concept. I hope you have enjoyed watching this video. So please don't forget to like, subscribe and share Panisha Tutor. And you can enroll in our various courses and visit our channel Panisha Tutor for more such videos. Thank you so much for joining us.